اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا سوال ہے، بڑا کامن سوال ہے۔ انڈے فرٹائل نہیں ہوتے، بچے نہیں بنتے، انڈوں میں بوت نہیں بنتے، مرغے میں مسئلہ ہے یا پھر مرغی میں مسئلہ ہے؟ بڑا کامن سوال ہے، اکثر دوستوں کا یہ سوال رہتا ہے۔ بریڈنگ کا موسم ہے، اگر اس موسم میں بھی، کیونکہ اس موسم میں مرغے مرغیوں کو کراس کرتے ہیں، مرغیاں انڈے اتار رہی ہیں، انڈے دو سیج کرواتے ہیں، بھلے وہ انکوبیٹر سے کروا رہے ہیں یا پھر مرغی کے نیچے رکھ رہے ہیں، تو 2 بچے نکل رہے ہیں، 3 بچے نکل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انڈوں میں بت نہیں باندھ رہے، انڈے فرٹائل نہیں ہیں، انڈوں میں بچے نہیں بنتے۔ اس ویڈیو میں آج اس ٹاپک پہ ہی بات ہوگی، جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کون سی ہماری اپنی غلطیاں ہیں یا پھر پرندوں میں کوئی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں یا کوئی بیماری ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کے آسان علاج کی طرف بھی آئیں گے۔ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں، تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں آپ دوستوں کو وقت پہ ملتی رہیں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بڑے کام کی ہے، بڑی تسلی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پرندہ ہے، مرغا ہے یا مرغی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا جوڑا لگا ہوا ہے، 15 انڈے آپ کے پاس آ گئے ہیں، 15 میں سے آپ کے پاس 2 بچے آ رہے ہیں یا پھر 3 بچے آ رہے ہیں، مطلب انفرٹائلٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، انڈے میں بوت نہیں باندھ رہا۔ تو سب سے پہلے اس فالٹ کو، اس بیماری کو پکڑیں کہ آپ کے مرغے میں مسئلہ ہے یا پھر مرغی میں مسئلہ ہے۔ مطلب آپ اس مرغے کے ساتھ دوسری مرغی لگا دیں، اگر پھر بھی سیم یہی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ کے مرغے میں مسئلہ ہے۔ ایجڈ جو مرغے ہوتے ہیں، 3 سال سے جن کی ایج پلس ہوتی ہے یا 4 سال سے جو اوپر کے ہوتے ہیں، ان میں ان کے جو جرسیم ہیں یا ان کے جو سپرمز ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جو جوان مرغا ہے، مثال کے طور پہ 1.5 سال سے لے کے 3 سال تک جس کی ایج ہے، اس مرغے کے سپرمز یا جرسیم کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے جوان کسی مرغے کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ جب آپ نے فالٹ پکڑ لیا، اگر آپ کے مرغے میں مسئلہ ہے یا پھر مرغی میں مسئلہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ اور کچھ پوائنٹ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ لیکن انفرٹائلٹی کا مسئلہ جب بھی آ رہا ہو، جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک پوائنٹ ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے سارے پرندوں کو چیک کریں۔ چیک کیسے کریں؟ اپنے مرغے مرغیوں کو پکڑیں، پکڑ کے ان کی دوم کو چیک کریں۔ ایک تو مرغے کے اوپر والی بڑی سریاں ہوتی ہیں، جو نیچے چھوٹے پار ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، ان کی آگے سے نوک باندھ جاتی ہے، اور سیم اسی طرح مرغیوں کے بھی جو نیچے چھوٹے پار ہوتے ہیں، وہ پار ٹوٹے ہوتے ہیں، ان کی نوک باندھ جاتی ہے۔ جب مرغی بیٹھتی ہے، مرغا کراس کرتا ہے، اگر مرغی کے کوئی پار ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کے وہ پار مرغی کو چبھتے ہیں۔ جب مرغا کراس کے لیے کراس کرتا ہے تو مرغی کو جیسے ہی پار چبھتا ہے، مرغی آگے سے ہل جاتی ہے۔ جب ہلتی ہے تو وہ پانی، وہ جرسیم، وہ مرغی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ کراسنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انڈے فرٹائل نہیں ہوتے۔ سیم اسی طرح اگر مرغی کا کوئی پارٹ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی نوک سی بنی ہوئی ہے، تو وہ مرغے کو بھی لگتا ہے، کیونکہ مرغی جب بیٹھتی ہے تو اپنی دم کو اوپر کر لیتی ہے، جب اوپر کرتی ہے تو مرغے کو بھی وہ پار لگتا ہے اور مرغا بھی ہل جاتا ہے۔ ایک دم جب ہلتا ہے تو وہ پرفیکٹ کراسنگ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ انہیں اس کی دم کو بڑی تسلی کے ساتھ چیک کرنی ہے۔ دم کی جوڑ کے ساتھ ایک دم کنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آئل ہوتا ہے۔ بعض ٹائم اس میں ریشہ باندھ جاتا ہے، اس میں پیپ وغیرہ باندھ جاتی ہے۔ اگر اس کو آپ چیک کریں، پر اٹھا کے آپ اس کو چیک کریں، اگر اس میں کوئی ریشہ وغیرہ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ کسی میڈیسن سے بھی کر سکتے ہیں جو ریشے کو خشک کرتی ہے، یا پھر اس پیپ کو ختم کرتی ہے، یا پھر اس جو وہ دم کنڈا ہے اس کو آپ ہلکا سا کٹ لگائیں گے، کٹ لگا کے چھوڑ دیں، 4-5 دن کے اندر وہ خود ہی اس میں سے وہ پیپ وغیرہ ساری نکل جائے گی۔ برل 1-2 دن کے بعد اسے دیکھتے رہیں، اگر نہیں نکل رہی تو ہاتھ کی مدد سے اسے دبا کے وہ ریشہ، پیپ، جو کچھ بھی ہے اسے باہر نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو، سب سے ضروری چیز، ایک مرغا ہوتا ہے
4 मुर्गियाँ, 5 मुर्गियाँ, 6 मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ भी साथ चल रही होती हैं। तो मुर्गियाँ ज़्यादा होने की वजह से भी अनफर्टिलिटी का मसला आता है। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर आपका मुर्गा मस्त है, हेल्दी है, एक्टिव है, ठीक है, मस्ती में है वो, तो आप उसके साथ 3 से 4 मादियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि आपका मुर्गा मस्ती में नहीं है या वो ज़्यादा वो नहीं है, तो आप उसके साथ कोशिश करें कि कम मादियाँ लगाएं। ठीक है, ये भी एक बड़ा कीमती पॉइंट है कि बहुत सारे दोस्त उन्होंने लगाई होती है। एक और चीज़ है कि बहुत सारे दोस्तों के परिंदे खुले फिर रहे होते हैं। जब वो खुले फिर रहे होते हैं तो खुले फिरने में ये होता है कि मुर्गियाँ एक दूसरे को मारती हैं, मुर्गियाँ आपकी डिस्टर्ब रहती हैं, मुर्गे एक दूसरे को पट्टे पट्टे आपस में लड़ रहे होते हैं, बड़े मुर्गे डिस्टर्ब। जब मुर्गा क्रॉस करने लगता है पीछे से दूसरा आ जाता है, दूसरा आके उसे मार देता है, भले उस वक्त वो छोटा पट्ठा भी उसके पास खड़ा है तो वो भी पीछे से आके उसे डरा देता है, वो बड़ा मुर्गा भी हिल जाता है, उठ जाता है। इस तरह भी अनफर्टिलिटी का मसला आता है। आपके पास एक और चीज़ भी है कि जब आप खुडों में बंद करते हैं, खुडों में आपके परिंदे ज़्यादा टाइम बंद रहते हैं। ठीक है, देखिए इंसान है, जैसे हम कमरे में किसी एक कमरे में हम बंद हो जाएं, 1 महीने के लिए बंद हो जाएं, 2 महीने के लिए, तो हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में भी कोई ना कोई मसला मसाइल आ जाएगा। तो मुर्गियों को खोला करें, मुर्गों को भी खोला करें, इन्हें मट्टी वगैरह खिलाया करें। ठीक है, मट्टी में ये खेलें, सब्ज़ा वगैरह, घास फूस, कीड़ा मकोड़ा, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें। क्योंकि आजकल शौक़ आपको पता है शहरों में आ गया है, छतों पे आ गया है, पैर जगह नहीं होती, और इस तरह ऐसे परिंदों में भी अनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी जो पॉइंट है, सबसे जो अहम पॉइंट है, ख़ुराक की कमी की वजह से मुर्गे या मुर्गी को प्रॉपर ख़ुराक नहीं मिल रही होती, उसके जिस्म की ख़ुराक की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती। ठीक है, इस वजह से भी अनफर्टिलिटी, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है कि परिंदे की ख़ुराक जो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है उसका जो सिस्टम है वो कमज़ोर ही होगा। मुर्गियाँ जो होंगी, कैल्शियम की कमी उन्हें हो जाएगी, मुर्गों के स्पर्म्स कमज़ोर हो जाएंगे, जरासीम कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों, पेड़ के कीड़े, जुएँ, चीचड़। जुएँ, चीचड़, ये चीज़ें भी खून चूसती रहती हैं, परिंदा डिस्टर्ब रहता है। परिंदे की जो खुराक की जो ज़रूरत होती है, खुराक तो वो ले रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें उसका खून चूस जाती हैं, उसकी प्रॉपरली ज़रूरत पूरी नहीं होती। पेड़ के कीड़े, जो भी आपका परिंदा खुराक खा रहा होता है, उसकी जो 70% जो खुराक है वो पेड़ के कीड़े खा जाते हैं। एक वजह ये भी बन सकती है कि पेड़ के कीड़ों की वजह से, जुओं की वजह से, चीचड़ की वजह से भी अंडे अनफर्टाइल आ सकते हैं। अनफर्टिलिटी का जो मसला है सिर्फ नए शौकीनों के साथ नहीं, ये पुराने शौकीनों के खुडों में भी ये चीज़ रहती है। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट उन्हें समझ लग जाते हैं। वो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि दुम टूटी हुई है या दुम का कोई पर उसकी नोक सी बनी हुई है, मुर्गी को वो लग रहा है, इससे कोई मसला मसाइल हो रहा है, तो वो चीज़ें उनकी आँख में वो देख लेते हैं, समझ जाते हैं। एक और चीज़, तस्वीर में आप देखें, मुर्गा क्रॉस कर रहा है, इसकी टांगों में कितनी वाइब्रेशन है। ठीक है, जिस मुर्गे के कील बड़े होंगे, ठीक है, कील बड़े होंगे तो वो मुर्गी को लगेंगे, और मुर्गी क्रॉस नहीं होगी, भागेगी। अगर आप पर उठा के देखेंगे मुर्गी की इस जगह पे ज़ख़म बन जाते हैं। तो ब्रीडिंग के लिए जो आप पैर लगाएं, उन जो कील हैं वो काट दें। ठीक है, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। आसान सा इलाज भी आपको बताता हूँ, और कुछ पॉइंट भी बताता हूँ कि आप जो आपके साथ ये मसला आ रहा है अनफर्टिलिटी का। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को पकड़ना है कि आपके मुर्गे में मसला है या फिर मुर्गी में। अब इन सारी चीज़ों की इलाज की तरफ आते हैं। कुछ पॉइंट भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे ही ब्रीडिंग का मौसम स्टार्ट हो, ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो, आपने परफेक्ट पेयर लगाने हैं। परफेक्ट पेयर मतलब आपके पास अगर यंग मुर्गे हैं, 18 माह से अगर उनकी एज शुरू हो के 3 साल तक अगर मुर्गे हैं, हेल्दी हैं, वो एक्टिव हैं, सेहतमंद आपको नज़र आ रहे हैं, मस्त हैं, तो एक मुर्गे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 मुर्गियाँ लगानी है। 3 मुर्गियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा उनके साथ भी आप ना लगाएं। ठीक है, अगर एजड मुर्गे हैं आपके पास, 3 साल से एज उनकी प्लस है, 3 साल से जो 4 साल, वो भी एजड नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर उनके स्पर्म्स कमज़ोर हो जाएं या जरासीम कमज़ोर हो जाएं, अगर 5 साल के, तो ऐसे मुर्गे के साथ एक मुर्गी लगाएं या फिर 2 मुर्गियां लगाएं। वो भी आप मुर्गे की उसकी पोजीशन देखें, मुर्गा आपका मस्त है, हेल्दी एक्टिव है, तो 2 मुर्गियां लगा दें, नहीं तो एक लगा दें। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ जो दुम के मैंने आपको पर बताए हैं, मुर्गी और मुर्गे दोनों के जो पर हैं, परों को आपने देखना है। अगर कोई टूटा हुआ पर है तो उसे निकाल दें।
दम कड्डा देख लें, दम कंडे में कोई पास्ता वगैरह, कोई पीप वगैरह, कोई रेशा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं बनी। अगर बनी है तो उसे मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म करें, या फिर उसे कट लगा के या फिर दबा के उसे बाहर निकाल दें। ठीक है। और ब्रीडिंग वाले मुर्गों के कील बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। ब्रीडिंग वाले जो मुर्गे होते हैं, जैसे अब शिकारी हजरात मुर्गों को लड़ाते हैं, उन्हें बड़ी खुराकें देते हैं, बड़ी उनकी खिदमत करते हैं, तो जो ब्रीडिंग वाला मुर्गा है इसका जो काम है वो उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। इसकी भी उसी तरह खुराक ज़रूरी है, अच्छी खुराक इसे देनी चाहिए। अगर खुराक आप इसे परफेक्ट देंगे, अच्छी खुराक देंगे, आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। आपके जो मुर्गियाँ हैं वो सेहतमंद होंगी, मुर्गे सेहतमंद होंगे, अंडे बड़े बनेंगे, अंडे फर्टाइल होंगे, उनमें से बच्चे बड़े बनेंगे। ठीक है। तो खुराक का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये भी सवाल होगा कि खुराक में क्या देना चाहिए। बाजरा जो है मुर्गों की परफेक्ट खुराक है बनिस्बत गंदम के, मकई के दानों के। मिक्स दाना आप करके वो चीज़ें भी आप साथ चला सकते हैं, लेकिन बाजरा जो है, बाजरे का इस्तेमाल मस्ट है मुर्गों के लिए, मुर्गियों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है, परफेक्ट चीज़ है। ठीक है। सब्ज़ा आप दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, मल्टीविटामिन का साथ इस्तेमाल लाजमी करवाएं। तो ये जब ऐसे आप इनकी खुराक चलाएंगे तो आपके मुर्गे हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद रहेंगे। अंडा बहुत मुफीद है ब्रीडिंग वाले मुर्गों के लिए। हफ्ते में एक मरतबा आप, अब मौसम आगे गर्म है, एक हफ्ते में एक मरतबा या 2 मरतबा आप अंडा जो है फ्राई करके अपने मुर्गों को खिला दें। सर्दियों में तो आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में 2 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा आप मुर्गे को अंडा दें। महीने में 4 मरतबा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट अगर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, आप अपने परिंदों को खुराक भी अच्छी दे रहे हैं। रात को मेरी अब्बात से एक भाई के साथ बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 5-6 उनके पास मुर्गे हैं और 10-12 उनके पास मुर्गियाँ। एक मुर्गे के साथ उन्होंने 2 मुर्गियाँ या फिर 1 मुर्गी लगाई हुई है, और मुर्गे भी उनके एजड नहीं हैं, मतलब 2 साल की एज के दरमियान दरमियान उनके पास मुर्गे हैं। तो अगर इस तरह का मसला आपके साथ भी आ रहा है, या उन भाई को भी मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का जब भी मसला है आपके साथ आए, आपके फिर भी अंडे अनफर्टाइल आ रहे हैं, तो आप मुर्गों को अलग बंद कर दें। उन्हें 15 दिन तक आप मुर्गी ना दिखाएं। ठीक है। मुर्गी, आपका मुर्गा 15 दिन तक बिल्कुल ना देखें, और उस 15 दिन के दरमियान मल्टीविटामिन और उनकी जो खुराक है, डाइट है, अंडे का इस्तेमाल, ये आप उसे करवाएं। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन मिलता है। अगर मुर्गे में मसला है, मैंने शुरू में भी जैसे आपको कहा था कि आप फॉल्ट पकड़ें, अगर मुर्गे में मसला है, उसके स्पर्म्स कमज़ोर हैं, उसके जरासीम कमज़ोर हैं, टेस्टोस्टेरोन ये आपको इंजेक्शन मिलेगा। ये इंजेक्शन आप 2 हिस्सों में तकसीम करके आप अपने मुर्गे को लगा दें। ठीक है। ये 10 दिन में लगाएं। ठीक है, एक मरतबा, फिर उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा लगा दें, फिर 10 दिन बाद, मतलब 1 महीने में आप ये 3 मरतबा लगा दें। ठीक है। अगर आप इसे इंजेक्शन को एक बार ही लगा देंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, लेकिन कोशिश करें 2 हिस्सों में तकसीम करके लगाएं, या फिर 3 हिस्सों में तकसीम करके लगा दें। ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है टेस्टोस्टेरोन, इसका जो बेसिकली मतलब या मकसद है ये यही है कि ये स्पर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये आप इस्तेमाल करेंगे, अगर अब बूढ़े मुर्गे हैं आपके पास, एजड मुर्गे हैं, या मुर्गे आपके कमज़ोरी में हैं, तो आप नैरो बयान भी उसे दे सकते हैं। नैरो बयान 5 दिन के बाद दे दें, और फिर 5 दिन के बाद मतलब कि आप टेस्टोस्टेरोन लगा दें। महीने में 3 मरतबा टेस्टोस्टेरोन लगेगा, और आप अगर इस तरह 5 दिन के बाद लगा रहे हैं नैरो बयान, तो 6 मरतबा लगेगा नैरो बयान। ठीक है। नैरो बयान जो है ये कमज़ोरी के लिए है, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए है। जो स्पर्म्स के लिए है वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। ये इलाज है जिन मुर्गों के जरासीम कमज़ोर हैं, स्पर्म्स कमज़ोर हैं। और दूसरा ये है कि जब 15 दिन के लिए आपने मुर्गे को बंद रखा, उसने मुर्गी नहीं देखी, तो आपको वो नज़र आएगा, जब वो मस्ती में आ जाएगा, मस्त होगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप उसके साथ मादी लगाएं और उसका रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह उसका जो रिज़ल्ट होगा, वो जो उसके अंडे होंगे वो फर्टाइल होंगे। और इन 15 दिनों में जो आपकी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों को आप खुला करें, उन्हें आप मट्टी वगैरह में वो खेलें, उनकी जो मुर्गियों की खुराक है उसको भी आप अच्छा करें, पालक का इस्तेमाल करवाएं, सब्ज़ा वो खाएं। अंडों के छिलके होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो घर में हम अंडे इस्तेमाल करते हैं, छिलके हम फेंक देते हैं,
وہ چھلکے پاؤڈر فارم میں بریک کر کے وہ مرغوں کو استعمال کروائیں، ہلدی پانی میں ملا کے استعمال کروا دیا کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، مطلب کہ یہ جب آپ پرندوں کو استعمال کرواتے ہیں ان کے بڑے زبردست فائدے ہیں۔ میں نے پیچھے بریڈنگ کے حوالے سے بے شمار ویڈیو آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو سمجھنے کو ملیں گی اور فائدہ ہوگا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو بڑی اہم ہے، آپ نے یہ سارے طریقے بھی کر لیے، یہ سارے پوائنٹ بھی اپنا لیے، علاج بھی آپ نے آپ نے ہر قسم کا علاج کر دیا، اس کے بعد بھی اگر آپ کا مرغا بوت نہیں ڈال رہا تو اس مرغے میں پھر مسئلہ ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم انسانوں میں بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں، تو اسی طرح ان کا بھی پیچھے سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے، کسی مرغے میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے تو اس مرغے کا پھر علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اس مرغے کو آگے پیچھے کریں اور اپنے شوق میں کوئی اور بلڈ شامل کریں، کوئی اچھا بلڈ شامل کریں جس کا آپ کو رزلٹ ملے۔ باقی یہی میری ویڈیو تھی، امید ہے کہ ویڈیو کی ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شیئر لازمی کریں کیونکہ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔